Welcome, my dear students. Today I am presenting you a very important slide of your subject auditing, in which you will study about the term auditor is a watchdog, not a bloodhound. This topic is very important in terms of the knowledge of the auditing subject as well as in examination point of view also. In this term, you will study that auditor should work like a watchdog but not a bloodhound. He should act like a tired servant in the company. An auditor is not bound to be detective or to be approached or to, or to be approached like a person who is always in suspicion, right? सो ऑडिटर का वर्क यहाँ पे है कि वो कंपनीज में हुए जो भी अकाउंटेंसी है उसकी डिटेल स्टडी करे और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स, रिगार्डिंग द एनी डाउट्स, तो उसको सॉल्व करे, उसको एडवाइस करे. दूसरा आप इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. In objective of auditing, the objective are classified into three terms: the main objective of auditing, subsidiary objectives, and other objectives. So, still students, let's move on to the slide. Now, I hope you like the video. Students, this is a very important term called auditor is a watchdog, not a bloodhound. This term is very much important for the purpose of examination also, and to understand the liabilities and duties of an auditor, it is very important to know. This particular statement basically shows the auditor's duty. An auditor is not bound to detective or approach his work with suspicion or with the foregone conclusion that there is something wrong. He is a watchdog, but not a bloodhound. He is justified in believing tried servant of the company and is entitled to rely upon the representation provided. He takes responsible care. An auditor is a watchdog. The auditor must take care of the interest of the owner of the business. The watchdog is kept by the owner to remain alert and inform the owner whenever any suspicion arises. Some is, Same in the position of an auditor, he should make every possible effort to detect error and frauds so that he can protect the interest of his client. All this should be conducted by the auditor honestly and tactfully. Now, auditor is not a bloodhound. Duty of auditor is not of a bloodhound. He is fully justified in believing the tried servant of the company and is entitled to rely upon their representation provided he makes responsible care. It is not the part of his duty to harm those who have found guilty are or are found responsible for negligence or misappropriation. He shall not harm the person whose work he is to certify. The auditor must be systematic, sincere, honest while conducting his work. So, now you can very much understand about the auditor's duty, that there are some important points which we have to understand. So once go through this proper paragraph, that auditor is not bound to be a detective or to approach his work with suspicion. जरूरी नहीं है कि ये चीज सोच के ही ऑडिटर काम करता है. Basically, he is a watchdog. Watchdog means that he has to be provided the reasonable care of the company's owner. Objective of auditing mainly classified into three heads: main object, subsidiary objects, and other objects.
Main objects means obtaining knowledge about the correctness, fairness, and the truthfulness of the accounts. Subsidiary objects is all about the detecting errors and frauds and how to prevent it. Other objectives is like maintaining moral pressure on the employees, satisfying government officials, and legal compliances. The main objective of auditing is to find reliability of financial position and profit and loss statements. The objective is to ensure that the accounts reveal a true and fair view of the business and its transaction. The objective is to verify and establish that at a given date balance sheet present true and fair view of a financial position of the business and the profit and loss account gives the true and fair view of the profit or loss of the accounting period. It is to be established that accounting statements satisfy a certain degree of reliability. Thus, the main objective of auditing is to form an independent judgment and opinions about the reliability of accounts and truth and fairness of financial state of affairs and working results. The second objective is subsidiary objective. Subsidiary objective basically number one, detection and prevention of fraud and error. The one of the most important subsidiary objective of auditing is the detection and prevention of frauds. अब ये जो frauds हैं, these frauds ये क्या होते हैं? Basically, these frauds is basically the misrepresentation of financial information. Understood? ये जो डिटेक्शन फ्रॉड्स होते हैं बेसिकली दीज फ्रॉड्स आर बेसिकली द मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स वो फिगर को चेंज कर सकते हैं, वो अपना लॉस बढ़ा के दिखा सकते हैं, प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, क्रेडिटर्स को ज़्यादा कर सकते हैं, डेटर्स को कम शो कर सकते हैं। आपने अपने अकाउंटेंसी में इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा होगा जिसमें फिगर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, फाइनेंशियल टारगेट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो नीचे, फ्रॉड में इन्वॉल्व एंड मैनिपुलेशन falsification or alteration of records or documents. समझे? Next is, I hope you understand these points. And another point is the B. B is misappropriation of assets. A में जो चीज़ें आ रही हैं, these A में जो आपकी चीज़ें आ रही हैं, ये आ रही है आपकी मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, मतलब कुछ गलत चीज़ें लिख देना, नंबर्स को जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें कुछ अल्टरेशंस कर देना, डॉक्यूमेंट्स में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, कम ज़्यादा एसेट्स को दिखा देना, सप्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स, सप्रेशन, ठीक है, ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस विदाउट सब्सटेंस, मतलब उसका कोई यथार्थ नहीं है कि वो चीज़ प्रेजेंट है, लेकिन उसको इमेजिनरी उसको एक ट्रांजैक्शन शो कर दिया गया, लॉस बाय फायर नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, लॉस बाय फायर नहीं हुआ है, पर उसको दिखा दिया गया कि हाँ इस मंथ में ड्यू टू द लॉस इतना ज़्यादा, ड्यू टू द फायर इतना ज़्यादा लॉस पे करना पड़ा। दूसरा, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को क्या कर देना, उनका मिस एप्लीकेशन, गलत तरीके से यूज़ करना। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, इसके अलावा कई सारे जब ट्रायल बैलेंस सीखा था, कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस को देखा था जिसमें कि मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ किस तरीके से हो सकते हैं, उस समय आपको बताया गया था। द सेकेंड पॉइंट इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। ऊपर यहाँ पे अपन ने बात करी अबाउट द फ्रॉड, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एरर्स। फ्रॉड और एरर्स का मीनिंग डिफरेंट होता है। एरर माने होता है गलतियाँ, फ्रॉड माने होता है धोखा। एरर जो कि गलती से हो जाती हैं,
ठीक है, फ्रॉड जो जानबूझ के गलती की जाती है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट objective of auditing. Auditing ensures that there is no misstatement in the financial statements. Auditing ऐसा इंश्योर करती है, ऑडिटिंग क्यों करवाई जाती है, वाई, बिकॉज ऑडिटिंग एक ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, ये एक ऑथेंटिकेशन होता है विच प्रूव्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर शोन इज ट्रू एंड फेयर, ठीक है, विच इज ट्रू एंड फेयर, सो देयर इज नो मिस स्टेटमेंट, ये ऑडिटिंग इंश्योर करती है। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड थ्रू चेकिंग, एरर्स कैन बी डिटेक्ट थ्रू चेकिंग एंड वाउचिंग thoroughly books of accounts, ledger accounts, vouchers and other relevant informations. ऑडिटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिटिंग ये बताती है, ऑडिटिंग के थ्रू जो भी अकाउंट्स में अगर कोई एरर होता है, इफ़ एनी एरर अकर्ड इन दी while making the ledger account या vouchers या any books of accounts, trial balance, financial final accounts, कुछ भी होता है तो ऑडिटिंग उसको चेक करती है और ये इंश्योर करती है कि अब जो स्टेटमेंट रेडी हुआ है वो एकदम सही ऑथेंटिकेटेड है। नेक्स्ट इज जब हम डिटेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एरर्स की बात करते हैं तो उसको ब्रॉडली इन 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। दैट इज नंबर 1 इज एक किस तरह का एरर हो सकता है, यानी कि एक प्रिंसिपल नियमों को लगाने में गलती हो सकती है, ठीक है। एक आता है एरर ऑफ ओमिशन, एक आता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ डुप्लीकेशन मीन्स कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन है वो 2 जगह नोट हो गए हैं। एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज काइंड ऑफ एरर्स जैसे कि हमने इधर 200 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज़ डेबिट करना था, उसको हमने क्या कर दिया 200 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया, और जो 200 रुपीज़ क्रेडिट करना था वो 200 रुपीज़ डेबिट कर दिया, तो वो मैच हो गया क्रॉस ट्रांजैक्शन ना, डेबिट का अमाउंट डेबिट में चला गया और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में चला गया। तो अभी अकाउंटिंग में तो फिगर का टैली होता है ना, तो वो तो फिगर तो दोनों तरफ का बराबर आ गया, बिकॉज इस ए वाली एरर ने बी वाली एरर से कंपनसेट कर दिया और बी वाली एरर ने ए वाली एरर से कंपनसेट कर दिया। गॉट इट? इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि दिस errors are basically 1 2 3 4 5. I'm so sorry here, the 5 kind of errors, ये 5 तरह के errors बेसिकली बताए गए हैं जिसको हम फर्दर स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। Error of principle. When principles of bookkeeping and accountancy are not followed, such an error is an error of principle. For example, treatment of revenue expenditure as capital expenditure or capital expenditure as to revenue expenditure. For example, repairs of plant and machinery debited to the plant and machinery account or purchase of plant and machinery debited to the purchase account. अब स्टूडेंट्स, आप मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट पढ़ा था, मैम पढ़ा था। तो अब ये देखिए हमने इससे आपको क्या बताया कि रेवेन्यू अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसलेट कर दिया गया और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू समझ लिया गया। जैसे अब ये बताइए कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई,
ठीक है, तो वो किस में जाएगी? आपने जब भी सुना है बिग एक्सपेंसेस जब होते हैं और वन टाइम एक्सपेंसेस जब होते हैं, बिग एक्सपेंसेस और वन टाइम एक्सपेंसेस जब होते हैं और बड़ी अमाउंट में, ह्यूज, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में जो होते हैं वो किस में जाते हैं? वो जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना, वो जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। उस हिसाब से ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, क्या वो परचेज अकाउंट में जाना चाहिए? नो। किस अकाउंट में जाना चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसी तरीके से रिपेयर्स तो हर साल होनी है, बार बार होनी है, कई बार ही होनी है, तो रिपेयर्स हमारा एक कैसा एक्सपेंस है? रेगुलर एक्सपेंस है, ये वन टाइम एक्सपेंस नहीं है, ये रेगुलर एक्सपेंस है। तो रेगुलर एक्सपेंस होने की वजह से इसको कहाँ पे जाना चाहिए? रेवेन्यू अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है, और उसको कहाँ डाल दिया गया? कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया गया। सो इस अगर हम यहाँ पे ये बात देखें कि फिर ठीक है, अब हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम प्रिंसिपल्स की गलती करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है ना, प्रिंसिपल्स की गलती करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो इस हिसाब से एरर प्रिंसिपल्स की जो गलती होती है अकाउंटेंसी में, विच आर कॉल्ड अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें कि एक्सपेंसेस को नोट डाउन गलत किया जाता है, ठीक है, एक्सपेंसेस नोटेड या फिर पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट्स, है ना, रॉन्ग अकाउंट्स। और ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता सही से। Error of omission. Error of omission is basically when a transaction is omitted fully or in part of the books of accounts. That means basically it is usually arises through the negligence of the transaction. इसमें जो basically हमें जो बात याद रखनी है, that is the negligence of the transaction. और इसमें एक चीज़ और भी है, in the matter of recording the business. दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि दे आर द आउटकम ऑफ शॉर्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग ऑन पार्ट ऑफ क्लर्क। जो आपका क्लर्क की साइड से, ठीक है, क्लर्क की साइड से अगर कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक है, क्लर्क की साइड से कोई मिस्टेक हुआ है तो वो आपका जो है इसमें इसकी वजह से आ जाता है। जैसे बेसिकली अगर हम यहाँ पे आपसे कहें आई रेज इट, ठीक है, जस्ट आई रेज इट। अभी हम आपसे कहें कि इसको इजीली अगर हम और बना दें तो इसमें हम आपको बता सकते हैं कि लाइक इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। दूसरा इनकरेक्ट, एक तो इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन हो गया आपका, ठीक है, दूसरा इनकरेक्ट पोस्टिंग हो गई, ठीक है, दूसरा इनकरेक्ट पोस्टिंग हो गई, तीसरा हो गई टोटलिंग और बैलेंसिंग में मिस्टेक, एक मिनट, टोटलिंग में मिस्टेक हो गई। तीसरा आपका आता है कैरिंग फॉरवर्ड, जो हम कैरिंग फॉरवर्ड करते हैं उसको गलत लिख दिया गया। इस तरह की मिस्टेक को बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ ओमिशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज error of duplication, when the transaction is recorded twice and also posted twice in ledger, ठीक है, and sometimes the supplier send the invoice in duplicate, both the copies of the bill is recorded
separately. It is more difficult to locate such kind of errors. So, in this, to reveal the error or duplication, if two entries are the same side are appearing with the same amount. So, for that we can say that error of duplication is locate difficult to locate, and only through checking and comparing. This is the only medium, that is checking and comparing. Checking and comparing of the vouchers and with the entries in the books of account of originally entry will be reveal such errors. Fourth kind of error is error of commission. In this error of commission, we understand that when entries made in the books of original entries or ledger are incorrect, either wholly or partially. For example, here I have made the cash account, ठीक है? This is the debit side and this is the credit side. इधर मैंने लिखा है यहाँ पे टू सेल्स हमारी हुई थी 10 lakhs की, और गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 lakh। अब ये कैसी गलती है? जब ये वाउचर से चेक होगी तब डिटेक्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह की गलतियाँ होती हैं जो डिटेक्ट भी नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनके कोई भी ट्रांजैक्शंस या वाउचर या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। दीज आर वेरी फ्रीक्वेंट काइंड ऑफ एंट्रीज। ठीक है, सो when entries made in the books of original entry or ledger are incorrect, either wholly or partially, such errors are called errors of commission. For example, posting from original book of entry is wrongly made in wrong account. ठीक है, जैसे ये सेल्स पे करना था, ठीक है, अभी यहाँ पे एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली हो सकता है यहाँ पे लिख दिया हो राम डेबिट टू सेल्स, इसी एंट्री को, इसी एंट्री में उन्होंने लिखनी थी 1 लाख की फिगर, लिख दी उन्होंने 10,000 की फिगर। कुछ भी हो सकता है। अगर इसका एविडेंस है तब तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर एक सोल ट्रेडर है, छोटा अमाउंट का व्यापारी है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करता है और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बचा के नहीं रखे हैं, या उसने कोई क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज करी है, ठीक है, क्रेडिट सेल करी है या कोई क्रेडिट परचेज करी है, तो उसके मान लो उसके पास अगर प्रूफ्स नहीं है तो उसको टैली करना मुश्किल हो जाता है, तो उस समय ऑडिटिंग में बड़ी परेशानी आती है। इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। सम ऑफ द रॉन्ग एंट्रीज अफेक्ट ट्रायल बैलेंस एंड सम डू नॉट। अगर वो कंपनसेट हो गई फ्यूचर में जा करके, या मान लो यहाँ पे इन्होंने 1 लाख को 10,000 कर दिया, ठीक है, 1 लाख की फिगर थी उसको 10,000 लिख दिया, कहीं पे 10,000 की फिगर थी उसको उन्होंने गलती से 1 लाख कर दिया, तो अब ये बताओ अदर विदा हो गया कि नहीं हो गया? मीन्स एक दूसरे से कंपनसेट हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से सेल बुक में सही लिखा है, कैश में जाकर के गलत कर दिया, कैश में लिखा है सही, पर्सनल अकाउंट में जाकर गलत लिख दिया, रेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट में जाना था वो आपका रियल अकाउंट में चला गया। तो इस तरह की कोई भी जो गलतियां होती हैं ये सब कहलाती हैं एरर्स ऑफ कमीशन। इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट वन आती है आपकी compensating errors. When an errors offset the effect to the another error, such errors are known as a compensating errors. These errors do not affect agreement of the trial balance, hence can be located by the auditor easily. These error can be located by it. These error can be located by it. मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अब ये बताओ ना, यहाँ पे 10,000 की अमाउंट थी, यहाँ पे 1 लाख की अमाउंट कर दी, 1 लाख वाली अमाउंट को 10,000 के अमाउंट पे लिख दिया, तो एक तरीके से कंपनसेट हो गई और ये फाइंड आउट भी नहीं हो पाएगी, बहुत ही मुश्किल आएगी इसको फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी एरर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए।
ठीक है। जब भी हम कोई भी अकाउंट बना रहे हैं उसकी एंट्रीज को हमें प्रॉपर फॉलो अप करना चाहिए। और वट एवर द डॉक्यूमेंट्स एक्सिस्ट, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ वाउचर्स, बिल्स, ठीक है, मेल्स, हाँ, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन की आपके आजकल तो स्क्रीनशॉट्स चलते हैं, कुछ उसके स्क्रीनशॉट जिसका भी हार्ड कॉपी होना चाहिए, ठीक है, जिसका भी हार्ड कॉपी होना चाहिए, इन सबको कैसे रखना चाहिए, इन सबको प्रॉपर पूरी पूरी तरीके से पूरी तरीके से सेव करके चलना चाहिए, पूरी तरीके से सेव करके चलना चाहिए, क्योंकि हमें इन डॉक्यूमेंट्स की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ऑडिटर किस तरीके से लोगों से, एम्प्लॉय से, क्रेडिटर से, डेबिटर से, किसी से भी वो पूछताछ कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, इसका राइट होता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी सिचुएशन को समझिए ना कि वो कंपनसेटिंग एरर्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएगा, how he can able to compensate, how he can able to find out the problem अगर उसको लग रहा है कुछ, है ना। तो these are basically the errors जिनको कि ऑडिटर को रेक्टिफाई करना होता है। बेसिकली यही होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब एरर्स को चेक करना, और इन्हीं चेकिंग्स को करना ही ऑडिटिंग होता है। टू चेक, टू टू वेरीफाई, ठीक है, टू चेक, टू वेरीफाई दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, and make a report of those transactions. These are the basic and most important work of auditing. ये बेसिक आप समझिए जड़ है जो आनी चाहिए सबको समझ में कि ऑडिटिंग कराने का पर्पस क्या है, ऑडिटिंग सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, क्यों ऑडिटर इतना हाई पेड होता है, हाईली पेड होता है, क्यों वो इतना ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, क्यों उसको इतना अप टू डेट रखना होता है अपने आप को, ठीक है।